سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز، ان کی مشکلات الحدیث جو کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے، صفحے پر یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کبیدہ خاطر ہیں، ناراضگی نہیں، کچھ کبیدہ خاطر ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہے، کیونکہ حدیث کی وجہ سے کبیدہ خاطر ماننا یہ تو ایک اور معاذ اللہ کوئی چیز بن جائے گی، اس لیے نہیں کہ میں نے حدیث سنائی، تو پھر کس لیے؟ کہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے، میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے، یعنی ان کا اجتہاد کیا تھا؟ یوسیکم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد تھا کہ شامل ہیں۔ اب حدیث کی وجہ سے نہیں، انہیں یہ افسوس ہو رہا تھا کہ میرا اجتہاد یہ غیر افضل کیوں بنا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چلو کوئی نہیں، میں جا کے دل جوئی کر لیتا ہوں، اجتہاد مانا گیا، اور اجتہاد میں پھر ایک طرف جب صاحب ہے تو جو دوسری طرف ہے اس کو غیر افضل سے تسلیم کیا گیا۔ تو آج یہ لوگ جو ہمارے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں، یہ کاظمی صاحب کا یہ کہ جملے دہرا سکتے ہیں۔ جلالی صاحب نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمت والرضوان کے قول کو پیش کیا ہے۔ علامہ کاظمی صاحب علیہ الرحمہ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ فدق کو اجتہاد مانا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے فدق نہ دینے کو بھی اجتہاد مانا ہے۔ اس پر عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ کاظمی علیہ الرحمت والرضوان کی حیثیت کا علم ہمیں ہے، ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو جملہ علامہ کاظمی علیہ الرحمت والرضوان کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے وہ علامہ کاظمی علیہ الرحمہ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو مان لینے سے کتنی خرابی لازم آئے گی ذرا آپ سوچیں۔ علامہ کاظمی کی عبارت میں یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض کیوں ہوئی تھی؟ اس میں ہے علامہ کاظمی کے حوالے سے کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی، سیدہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر اہل علم کی میں توجہ چاہتا ہوں، ایک علمی گفتگو۔ ان کا اجتہاد سیدہ کے اجتہاد سے بہتر تھا۔ بہتر کا کیا مطلب؟ ظاہر بات ہے، بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اس اجتہاد کی دلیل مضبوط تھی، اور جب اصول یہ ہے کہ جب مجتہد کو معلوم ہو جائے کہ دوسرے مجتہد کی دلیل مضبوط ہے، دوسرے کا اجتہاد ان کے اجتہاد سے زیادہ قوی ہے، تو ایسی صورت میں یہ مان لینا ضروری ہے کہ دوسرے کا اجتہاد قوی ہے تو اپنے اجتہاد سے رجوع کر لینا لازم ہے، رجوع کر لینا لازم ہے۔ اور تعصب کی بنیاد پر دوسرے مجتہد سے ناراض ہونا یہ نفسانیت ہے۔ تو آپ سوچیے، اگر علامہ کاظمی صاحب کے حوالے سے جو جملہ پیش کیا جا رہا ہے اگر وہ جملہ صحیح ہو تو کتنی بڑی خرابی لازم آئے گی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کے قوی ہونے کا علم آ گیا،
उनको पता चल गया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इज्तिहाद बेहतर है, फिर भी देखिए सैयदा तैयबा ताहिरा नाराज हो गई। और नाराज हो गई क्यों? ये कि उनका इज्तिहाद बेहतर है। तकाजा तो ये है कि जब मालूम हो गया कि उनका इज्तिहाद बेहतर है तो अपने इज्तिहाद से उनके इज्तिहाद की जानिब रुजू फरमा लेती हैं और नाराजगी की कोई बात नहीं होती, क्योंकि एक मुज्तहिद अपने कौल से, अपने इज्तिहाद से जब रुजू करता है दूसरे मुज्तहिद के कौल की तरफ, तो फिर तासुब नहीं होता, नाराजगी नहीं होती है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब मालूम हो गया सैयदा को कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का इज्तिहाद इनके इज्तिहाद से बेहतर है, तो वो नाराज हो गई। ये इल्जाम है, खतरनाक इल्जाम है। अल्लामा काज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान ऐसा जुमला नहीं लिख सकते हैं। अभी मुझे ये मालूम हुआ है कि अल्लामा काज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान के साहिबजादे ने बराअत का ऐलान कर दिया है कि जिस किताब का हवाला पेश किया गया है ये मुश्किलातुल हदीस, ये खुद अल्लामा काज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि उनके मलफूजात को, उनके बोले हुए जुमलों को, बोली हुई बातों को किसी ने जमा किया है। और जाहिर बात है कि मलफूजात में अगर कोई बात दलील से टकराए तो फिर ऐसी सूरत में उसका एतबार नहीं किया जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि अल्लामा काज़मी की ये इबारत हो ही नहीं सकती है। अब यहां पर देखना यह है कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या इज्तिहाद था। तो इससे पहले हम ये अर्ज कर चुके हैं कि यह मसला इज्तिहादी नहीं था। सैयदा पाक ने जब फदक का मुतालबा किया था तो आपका मुतालबा नस्से कुरानी पर मबनी था और उस वक्त आप उसमें हक बजानिब थी। फिर जब हदीस पाक सामने आ गई कि नबी का तरका मिरास नहीं बल्कि सदका है, तो सैयदा पाक ने मुतालबा तर्क फरमा दिया। तो तर्के मुतालबा नस पर मबनी था, तो सैयदा पाक उस वक्त भी हक और सवाब पर थी। मुतालबा और तर्के मुतालबा दोनों हालतों में सैयदा नस पर आमिल थी, इज्तिहाद और राय पर आमिल नहीं थी। लिहाजा दोनों में से किसी हालत में न इज्तिहाद था न खताए इज्तिहादी थी। तकरीब फहम के लिए यहाँ एक मिसाल पेश करता हूँ। जैद का इंतकाल हुआ, उसने तरका में एक मकान छोड़ा। जैद के इंतकाल के वक्त वो मकान जैद के दोस्त बकर के कब्जे में था। जैद के इंतकाल के बाद जैद की बेटी फातिमा ने जैद के मकान में बकर से हक़ वरासत का मुतालबा किया। उस वक्त बकर ने शरई हिबा नामा दिखाया कि जैद ने अपनी ज़िंदगी में ये मकान बकर को हिबा करके बकर के कब्जे में दे दिया था। यह सुनकर फातिमा मुतालबा से दस्तबरदार हो गई। अब सवाल यह है, क्या यहां पर यह कहना दुरुस्त होगा कि फातिमा जब बकर से अपने बाप के तरके का मकान मांग रही थी तो खता पर थी? ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि मकान का मुतालबा भी नस के मुताबिक था और मुतालबा से दस्तबरदार होना भी दलील के मुताबिक है। लिहाजा मुतालबा और तर्के मुतालबा दोनों हालतों में दोनों बातें दुरुस्त थी। इसी तरह सैयदा पाक सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा का मुतालबा फदक भी नस के मुताबिक था और तर्के मुतालबा भी नस के मुताबिक था। लिहाजा दोनों हालतों में सैयदा हक और सवाब पर थी। अगर जलाली साहब सैयदा पाक के मुतालबा फदक को इज्तिहादी ख़ता मानते हैं तो वो दलील से साबित करें कि सैयदा पाक का मुतालबा फदक और सैयदना
सिद्दीक़ अकबर का फदक देने से इनकार, दोनों उमूर मुजतहद फी हैं। सैयदा का मुतालबा नस्स कुरानी के मुताबिक, फिर तर्क मुतालबा नस्स हदीस के मुताबिक, तो इज्तिहाद ही नहीं पाया गया, तो ख़ताए इज्तिहादी का सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नस की बिना पर फदक देने से इनकार किया था, तो ये भी नस पर अमल था, ये अमल भी इज्तिहाद पर मबनी नहीं था, लिहाजा उनकी जानिब भी ख़ता या जुल्म की निस्बत नहीं की जा सकती। जलाली साहब ने अपने दावा पर दलील देने के बजाय अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी अलैहिर्रहमान के कौल को पेश कर दिया, और आपने सुना कि अल्लामा सईद अहमद काज़मी अलैहिर्रहमत व रिदवान का कौल अगर इसे मान लिया जाए कि ये उनका कौल है, तो कितनी बड़ी खराबी लाजिम आती है। हम ये इत्मीनान के साथ कहते हैं कि वो अल्लामा सईद अहमद काज़मी अलैहिर्रहमत व रिदवान का कौल हो ही नहीं सकता। और अगर बिल फर्ज मान लिया जाए, हालांकि हम कहते हैं कि वो अल्लामा काज़मी का कौल है ही नहीं, अगर उसे मान लिया जाए तो ये कौल तो खुद मोहताज दलील है। हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसे साबित किया जाए कि ये इज्तिहाद था, ये मनसूस मसला नहीं था। अल्लामा काज़मी अलैहिर्रहमत व रिदवान के कौल को पेश करना अल्लामा जलाली का अपने दावा के सबूत में, गोया के एक दावा की दलील में एक फर्द के दावा को पेश करना है, और दावा के सबूत में दलील ना देकर किसी के दावा को पेश करना, यह अजीब व गरीब बात है। चलिए मान लेते हैं अल्लामा काज़मी अलैहिर्रहमान ने उसे इज्तिहाद कहा है, जैसा कि जलाली साहब का फरमाना है। लेकिन क्या जलाली साहब ये साबित कर सकते हैं कि अल्लामा काज़मी अलैहिर्रहमत व रिदवान ने सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से ये फरमाया है कि सैयदा जब फदक मांग रही थी तो ख़ता पर थी? अल्लामा काज़मी अलैहिर्रहमत व रिदवान ने ऐसा हरगिज़ नहीं फरमाया है। नाज़रीन व सामीन किराम, अब जलाली साहब का एक जुमला और सुनिए। वो फरमाते हैं, मुझ जैसे बंदे को ये समझाने की ज़रूरत नहीं थी कि तुम रुजू करो। इस पर हम अर्ज़ ये करते हैं कि जलाली साहब को अगर समझाने की ज़रूरत नहीं तो हमने उन्हें समझाया भी नहीं, बल्कि उनसे रुजू की बात इस हुस्ने ज़न के साथ कही है कि गैर अंबिया के गैर मासूम होने के मसला को समझाते हुए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रवाफिज़ के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जलाली साहब की ज़बान से यह नामुनासिब जुमला निकला है, लिहाजा उन्हें इससे रुजू करना चाहिए। लेकिन हमारे उलमा अहले सुन्नत के खैर खाना मशवरे को कबूल करने को जलाली साहब ने अक़ीदा इस्मत अंबिया के मुनाफी समझा। गोया उनके नज़दीक फदक के मुतालबा में सैयदा को ख़ताए इज्तिहादी पर ना कहने वाले माज़अल्लाह अक़ीदा इस्मत को सैयद पाक और अहले बैत अतहार के लिए साबित करने वाले हैं। हालांकि किसी भी मुजतहिद से किसी ख़ास मसले में ख़ताए इज्तिहादी की नफ़ी करना उसके लिए इस्मत को साबित करना नहीं है, यानी उक़ूए ख़ता को नामुमकिन करार देना नहीं है। फदक के मुतालबा में सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ख़ताए इज्तिहादी की नफ़ी करने से हरगिज़ उनके लिए इस्मत अनिल ख़ता को साबित करना लाजिम नहीं आता है। अगर ऐसा है तो जलाली साहब उसको साबित करके दिखाएं। खैर, जलाली साहब साफ साफ अपने जुमले से रुजू करने के बजाय रुजू का मशवरा देने वाले उलमा व मशाइख हत्ता के अपने असातिज़ा और शयूख पर भी खूब बरसने लगे, उन्हें कोसने लगे और रुजू का एक जुमला बोलने के बजाय अपनी सफाई और वजाहती बयान के लिए लॉकडाउन के माहौल में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस करते रहे। जलाली साहब ने
پہلے تو مطلقاً یہ کہا کہ فدق کے مطالبہ میں سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہوئی ہے. پھر جب ان سے سوالات ہونے لگے تو کہا کہ میری مراد خطائے اجتہادی ہے. پھر جب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اجتہادی خطا کیسے ہے، اس کو دلیل سے ثابت کیجئے، تو ادھر ادھر کی غیر متعلقہ باتوں اور بے محل حوالوں میں الجھانے لگے. جلالی صاحب نے اب تک دلیل سے اپنے اس دعویٰ کو ثابت نہیں کیا کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. اس بات کو ثابت کرنے کے بجائے جلالی صاحب نے خطرناک انداز میں ایک اور بات کہہ دی کہ فدق نہ دے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لقمہ حرام کھانے سے بچا لیا. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا